Hello everyone, I am Karan Kumar, Public Relations Officer at Sindh Educational Organization, and I welcome you all in today's session. As you know, SEO used to have sessions on different topics, whether these are educational opportunities, career counseling, motivation, personal development, and hygiene. Today we are having a session on a very important topic related to personal life, that is overcoming laziness and embracing discipline. And today we have Mr. Shiraz Ahmed as our guest. Welcome, sir. He's well expertised in management professional, leadership development, team mentoring, process optimization, and performance enhancement, and has a lot of experience in managing different organizations and helping them to grow and succeed. With this expertise, he will be guiding you more on the topic how to overcome laziness and embrace discipline. So it's over to you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all participants. Walaikum salam, sir. Shall we begin? सर आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही. Hold on. There is a technical issue, I thought. सर आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही. Trying to fix it. Let me know about Yes, sir, it's okay now. when I thought. Shall we begin now? Yes, sir, sure. First of all, thank you, Sindh Educational Organization for me, giving me opportunity become a guest speaker for today's session. Secondly, I would like to thanks all of participants who have joined today's session. Among us who are not with us. Is there a network issue behind us, No, sir, everything is okay. Mr. Karan? Okay. Let me know if any voice cuts off. All clear. Let me know. Sir, it's okay now. You can continue. Hopefully, I will able to deliver valuable knowledge to all of you. First of all, I would like to thanks who are here. Sorry for interruptions. All candidates, all participants. Let me know what does session means. If anybody knows that, let me. Anybody just come in chat box. What does session means? Why we are here, Mr. Karan? Yes, sir. Session means a meeting where we gather and gain knowledge. Anybody else? Good. देखें जो सेशन है ना, तो आप उनको प्रेजेंटेशन से कंपेयर ना करें, ठीक है? लाइक जो मोस्ट ऑफ जो हमारे प्रेजेंटेशंस होते हैं वो पीपीटी वगैरह जो बना के एज एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ दी सब प्रोफेशनल्स होते हैं ना, तो वो पीपी पीपीटी को पीपीटी को जो है ना फॉलो अप नहीं करते. लाइक जो सेशन का हमारे तरफ मौक़िफ़ होता है ना, वो सिंपल ये है कि डिस्कशन. मेन मकसद जो सेशंस का होता है ना, कि आपको लोगों की तरफ जो अपनी नॉलेज है वो उनको देना, वो उन तक रीच कराना. अमजद अली जरदारी. यस, गुड. एनीबडी एल्स? लेट मी नो. यस, नूरलैंड. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. Sir, session means के interaction between teacher and instructor. यस, गुड. एनी अदर एग्जांपल ऑफ दैट? जस्ट फ्री फॉर ऑल, कोई मसला नहीं है. अगर आपको जो ना इंग्लिश में नहीं आपको जवाब आ रहा, तो आप जो ना वो उर्दू में बता सकते हैं. एनीबडी एल्स? क्लियर हो गया कि सेशन का मतलब क्या है? पार्टिसिपेंट्स जिनको क्लियर नहीं हुआ वो काइंडली वो हैंड रेस करें. गुड. ओके. तो जो टॉपिक है आज का, तो थोड़ा इन्फो वगैरह है उनका आपको? आपने प्रिपरेशन की है इनकी, लाइक के जैसे आपको पता चला कि भाई आज के डेट में सेशन है, तो आपने थोड़ा उसका अपडेट लिया है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है? एनीबडी एल्स? लेट मी नो. Yes, sir. तो थोड़ा बहुत क्या था, like in our day-to-day routine, we feel laziness in certain tasks related like procrastination, and we can't really. यू कैन टॉक इन उर्दू. नो इशू. जो ना वो दूसरों के लिए समझ के लिए ना इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट्स है ना, वो उनकी थोड़ी कह सकते कि इंग्लिश जो है ना वो इजी टू कन्वे, जो हमारी लैंग्वेज है ना उर्दू, तो वो इजीली कैच कर लेंगे.
if you don't mind. ठीक है सर, नो नो प्रॉब्लम। तो सर लेजीनेस मतलब जो है सुस्ती होती है, हम काम करने में प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, आगे पर छोड़ देते हैं, कल पर छोड़ देते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारे काम है ना वो रहते जाते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक डिसिप्लिन, मतलब हमें डिसिप्लिन रहना होता है। जो काम आज मिला हुआ है वो आज ही कर देना है। तो उस हिसाब से इससे रिलेटेड टॉपिक है। बिल्कुल। समीर खान सुमरो, you got it? Samir Khan Sumro, is it clear? You got that? What Karan said? Would you like to tell me what Karan said? If you got that? देखें, ये जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ना, इसको ये ना समझे कि जो हेजिटेशंस होती हैं, लाइक समझे कि ये एक रफ क्लास है, नो डाउट। जिनको ये कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सीखेंगे, क्योंकि जो इंटरेक्शन होती है ना एक मेंटोर और जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, तो उनको वो कट ऑफ करके जो एक नॉलेजेबल पुटअप निकलता है, तो दोनों के मुतारिफ होता है ये चीज़। तो हेजिटेशन ना करें, कोई भी क्यूरीज वगैरह हम लास्ट जो है ना वो उसमें मिनट्स में वो पुटअप कर लेंगे, अपने पास वो नोट कर लें। इफ एनीबडी हैज, हाँ करण नेक्स्ट, वुड यू लाइक टेल मी मोर, टेल अस मोर। अबाउट व्हाट सर? लेजीनेस, व्हाट डज लेजीनेस मीन्स? लेजीनेस नहीं मतलब जो काम मिला है उसको आगे पर टालना, अभी नहीं करना, मतलब अपने कंफर्ट जोन में ही रहना। बिल्कुल। इतना ही पता है। ऑल पार्टिसिपेंट्स, करण सही कह रहा है? लेट मी नो, ऑल पार्टिसिपेंट्स लेट मी नो इफ करण इज राइट। इज देयर एनी क्यूरी बिहाइंड इट? लेट मी नो। यस, जफर इकबाल, गुड। Karan, most of candidates and participants have been not active. I think majority is here, but they have put it their phone. They haven't present with physical, I guess. Would you like to recall them? I can sir. All the participants are requested to please participate. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन में एंगेज हो ताकि इस सेशन को और इंटरेस्टिंग बना सके। प्लीज एवरीवन जी, ट्राई टू बिल्कुल। पार्टिसिपेट। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप चैट बॉक्स में मैसेजेस टाइप करें। Okay, Faria Jonejo, good. You're listening. देखें, लेजीनेस जैसे करण ने हमने बताया, गुड। रिहाना कंवर, गुड। अच्छा, इसको लेजीनेस को खत्म करने का कोई तरीका? देखें ना, ये जो टॉपिक है ना आज का, एक जर्नल है, क्योंकि इसी की वजह से हम जो गोल्स होते हैं ना, हर किसी का गोल है, नो डाउट, हर किसी का गोल है। तो गोल पे पहुंचने तक उस जो लेजीनेस को हम फाइट करते हैं ना ओवरऑल, तो उसको रीच करने के लिए ना, तो उसको लेजीनेस को कट करना पड़ता है। लाइक प्रॉपर स्केड्यूल होनी चाहिए, शेड्यूल होनी चाहिए। जी जी, रेहाना जी बताएं क्या कह रहे थे आप? गुड। यस रेहाना जी, जो मैंने बताया, एक प्रॉपर अगर हमारे पास शेड्यूल हो, बाइक के जैसे कि हमें आज का काम मिला है, आज हमने स्टडी करनी है। फॉर सपोज कोई एक ऑफिस का बंदा है, लेट सपोज उसको एक टास्क मिला हुआ है, टास्क मिला है भाई कि उसको आज के वक्त में उसको पूरा करना है। तो उसका क्या हुआ, उसका एक माइंड सेट हो गया, उसका एक गोल हो गया कि भाई मुझे आज के दिन ही इतने बजे, 5 बजे जो मेरा ऑफ हो रहा है, 5 बजे के अंदर मुझे ये जो है ना गोल पूरा करना है। तो उसका फोकस कहाँ पे रहेगा? यस, आई विल ट्राई यू लेटर ना, एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। फिलहाल जो फोकस है ना आपका, आप सबका जो भी क्यूरीज वगैरह है अपने पास नोट कर ले। इन द लास्ट मोमेंट आई विल क्लियर दैट। यस करण, देखें ये जो सेशन में बता रहा हूँ, अगेन रिपीटिंग, ये रफ सेशन है ना, इसको कोई भी वो ना समझे कि भाई एक जो जैसे जैसे लाइक के प्रोफेशनल प्रोफेशनल जो सिस्टम होते हैं ना, एक रफ टाइप होता है, लाइक के देयर इज नो हेजिटेशन ना। तो आप कुछ भी जो पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। जी समीर, आर यू गेटिंग दिस? बिल्कुल मिसबा, यू आर राइट। अच्छा, लेजीनेस को किल करने के लिए हमें क्या चेंजेस करनी चाहिए? लाइक एनीबडी? इसको प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे कि भाई लेजीनेस का मैंने आपको एक सैंपल दिया कि भाई एक मुझे टास्क मिला हुआ है, फॉर सपोज कि भाई ऑफिस से टास्क मिला हुआ है, मुझे ये आज पूरा करना है और मेरा फोकस पूरा उधर ही है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, लेजीनेस है ड्यू टू सम जो है
जो ना काशंस की वजह से, तो मैं करूँगा भाई कि मैं कल करूँगा। अच्छा, कल करने की वजह ये होगी, कल करूँगा तो वो फिर उसके बाद क्या होगा, इस पे साइड इफेक्ट्स ये हैं। तो फॉर एग्जांपल बॉस को आज चाहिए, फॉर एग्जांपल उसको भाई के एक अर्जेंट इमीडिएट काम है, वो उनको आज रिक्वायर्ड है, काम पूरा नहीं हो सका, कल उनको बुलवा के वो जो है ना उनको डांटने के भाई कि मैंने आपको एक टास्क दिया, वो आपने मुकम्मल नहीं किया। इसके बाद जो है ना वो डिस्टर्ब भी बंदा होगा, इसके ये साइड इफेक्ट्स भी है। जी रेहाना, बिल्कुल बिल्कुल। लेजीनेस को किल करने का कोई मुझे तरीका बताए। एनीवन एल्स, हैंड रेस्ट करें प्लीज प्लीज। अमजद, वुड यू लाइक टू ओपन योर माइक्रोफोन माइक्रो? Yes, sir. Am I audible? यस यस, यू कैन। So I wanted to clear my clarisency that we can overcome on our laziness by maintaining our time schedule, time management, by motivating ourselves that I can do this and have a clear mindset that I have to do it in a very appropriate manner. We should have to engage ourselves in a manner that we can do it and satisfy in ourselves because we know that if we lack our something that it has become a burden on our body or in our mental approach that I have not done it today, I will do it tomorrow. It becomes like an habit. Yes, you are right. Would you like to tell some of जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी आसानी के लिए, अगर आप माइंड ना करें तो उर्दू में बता सकते हैं? क्योंकि ये देखें, इंग्लिश जो है ना हर कोई पढ़ सकता है, बट सम ऑफ इन बिटवीन अस, वो जो है ना उनकी आसानी के लिए ना उनको भी समझ आ जाए, तो विल बी बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस। जो हम यहाँ पे हैं इकट्ठे हुए हैं सब, तो हम यही चाहते हैं कि जो यहाँ पे सब कैंडिडेट्स आए ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ ना कुछ वो अपना वो 100 में से कुछ ना कुछ परसेंट वो आज सीख के जाएंगे। एक्सक्यूज मी उनके लिए हमने Yes, कोशिश sir. ये करनी है, तो जिनके जितनी आसानी हो ना उनके लिए, तो आप उनको इजीली कन्वे कर लें। सर Yes, sir. You may, ये अमजद। मीटिंग 40 मिनट्स की होती है, तो बाय मिस्टेकली इट वाज क्रिएटेड फॉर 20 मिनट्स, सो वी हैव क्रिएटेड another meeting. This will end here. So I want all of you to please join that meeting given in the chat box so that we can continue our session there. आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैट में दी गई जूम मीटिंग ज्वाइन करें। ये मीटिंग यहाँ पे एंड होने वाली है, तो हम अपना सेशन वहाँ पे कंटिन्यू करें। यस, वी गॉट सम ऑफ मिनट्स। देखें, जो लेजीनेस की प्रॉपर साइंस होती है ना, लेजीनेस क्यों होती है, वजह इनकी ये है, डिप्रेशन, एंजाइटी, या कोई ऐसा कोई जो है ना टेंस भाई के जो ना ऐसी सुस्ती जो कि भाई हमें कल कर लें, कल पर छोड़ने वाली बात अगर आज ना कर। Sorry for the interruption, guys. We will be continuing our session here. ओवरकमिंग लेजीनेस। जी समीर, would you like to tell us? Can you hear me, sir? Yes, yes, you can talk in Urdu, no issue. Yeah, sir. I will talk in Urdu. सर Hmm. बेसिकली जो अमजद भाई ने बताया वो हमने यही गेट किया कि बेसिकली जो हम सोचते हैं कि भाई ये काम हम कल करेंगे, तो ये हमारी सोच पे मतलब लेजीनेस, जब हमको फ्री छोड़ दिया जाता है तो हम लेजीनेस के थ्रू आते हैं, लेजीनेस की तरफ आते हैं। अगर हमको जहाँ पर पंक्चुएशन हो, जहाँ पर डिसिप्लिन हो बंदा, तो वहाँ पर हम लेजीनेस बिल्कुल नहीं करते। जैसे आपको देखा जाए कि जैसे कैडेट्स कॉलेज में होता है, वहाँ पर एक मतलब एक डिसिप्लिन माहौल होता है, जहाँ पर डिसिप्लिन माहौल होता है वहाँ पर लेजीनेस बंदे नहीं पैदा होते। खास करके यही एनवायरनमेंट का भी असर होता है। और दूसरा अपना माइंडसेट भी होता है कि भाई जो हमने माइंडसेट बनाया होता है भाई ये कल कर लेंगे, तो वो कल कभी नहीं आता। तो इसी वजह से भी लेजीनेस होती है। और लेजीनेस को हम ऐसे ही खत्म कर सकते हैं कि खुद को जब तक हम तकलीफ नहीं देंगे तो हम लेजीनेस नहीं खत्म कर सकते। मेरे एक उस्ताद थे, वो बताते थे कि आपको अगर कुछ करना है तो आपको अपने आप को तकलीफ में रखना होगा, कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाई वी फील लेजीनेस। जी बिल्कुल, यू आर राइट। थैंक यू समीर। होपफुली सबने जो जो समीर को जितना बताया, आई सपोज तो कि सबने ये जो ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो कैच किया होगा। लेट मी नो। जी, नूरलैंड, would you जी, would you सर। like to say something?
जी जी सर। सर, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें लेजीनेस जो है वो इस तरीके से भी हम खत्म कर सकते हैं कि हमें जो है वो खुद को हर रोज जो है मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। और मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जितने अच्छे से खुद को खुद मोटिवेट कर सकते हैं ना, उतने अच्छे से आपको दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता। तो जब तक आप मतलब आपकी लेजीनेस तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप अपने गोल्स के लिए बिल्कुल मतलब कोई भी आपका गोल है आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। पर उसके लिए जब तक आपके अंदर जो है वो मतलब उस गोल को कंप्लीट करने की शिद्दत नहीं होगी ना, तब तक जो है वो आपका लेजीनेस खत्म नहीं होगा और आपको उन गोल्स कंप्लीट करने के लिए अपने आप को रोज मोटिवेट करना होगा कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। हर एक चीज के बारे में अगर आपको कोई प्रेशर है उसके बारे में कि ये जो है मतलब कोई प्रॉब्लम्स आ गई, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो आप बैठ के सोचें, खुद को मोटिवेट करें कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ, इसके ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इस तरीके से जो है वो आप अपना लेजीनेस खत्म कर सकते हैं। यस, गुड गुड, जबरदस्त। अच्छा, इसमें एक पॉइंट एक और ऐड करते हैं ना, जैसे गोल करने के लिए है कोई भी हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो इसमें यह है कि प्लस पॉइंट ये है ना कि आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। मोटिवेशन के साथ साथ खुद पे यकीन होना चाहिए कि भाई मैं कर लूंगा। ये नहीं कि भाई मैंने नहीं करना, मैं नहीं कर सकता, मैं दूसरों से कमजोर हूँ। खुद को जो है ना दूसरों से कभी भी आप वो कमतर ना समझे। ये जो आपकी लेजीनेस की मेन जो वीकनेस पॉइंट ये है। मोस्ट ऑफ जो हमारे जो students होते हैं वो इस चीज को सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से ये ना थोड़े पीछे हो जाते हैं। लाइक एक सपोज सेट स्मार्ट गोल्स, ये सुना है आप सब लोगों ने? कैन एनीबॉडी एल्स वांट्स टू टेल मी अबाउट दैट? कोई बता सकता है मुझे कि स्मार्ट गोल्स क्या है? यस, सैयद अरूबी जी जी बताएं। देखिए, जो मोस्ट ऑफ हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आई थिंक उन्होंने माइक ऑफ करके ना वो एक्टिव नहीं है। करण, काइंडली लुक आफ्टर करें इसको, क्योंकि देखें ये सेशन को ना एक वैल्यूबल बनाए। नो डाउट डिस्कशन हो रही हैं, पर ये कि ना आपके लिए एक फायदेमंद हो। 100 में से अगर आपने 5 to 10% मिनिमम अगर आपने सीख लिया ना, कि उसके बाद ये मैं समझूंगा कि भाई जो मेरा एक सेशन है, जो एक छोटा सा सेशन है, ना कि भाई कोई लंबा चौड़ा हो जो जो ना पीपीटीज लेके आके बस शुरू हो जाए इंग्लिश में। देखिए उसकी ये होता है, मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा ना, लाइक जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, नो डाउट, बट कहने का मकसद ये है जो अपनी लैंग्वेज में बंदा किसी और को समझाता है ना, जैसे उर्दू हो गई, या हमारे मोस्ट ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं सिंधी हैं, या कोई और वो जो लैंग्वेज के हैं, तो जैसे मदर टंग जैसे होती है ना, उस लैंग्वेज में बंदा किसी को बताता है ना तो वो इजीली कैच कर पाता है। ये सही है ना? यस सर, बिल्कुल। जी। तो ये है कि कोशिश ये है कि हम उर्दू में अगर किसी चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे ना, तो हमारा जो माइंड कैच है ना वो ऑलरेडी हमारा माइंड प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी में उर्दू तो कॉमन है। तो उस हिसाब से हम इजीली उसको कैच कर पाएंगे। तो कोई बता सकता है मुझे सेट स्मार्ट गोल्स क्या है? अगर कोई स्पीक जो है ना वो कुछ पूछना चाहे, या किसी को कुछ आ रहा है, या मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ, तो काइंडली मुझे बताएं। देखें, एक्टिव रहेंगे इसमें सेशन में, तो यू विल गेट समथिंग। अगर आप तो वैसे ही अगर क्या कहते हैं इसमें फॉर सर्टिफिकेट ओनली आए हैं, तो विल बी सॉरी फॉर दैट। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में कुछ अपना वो प्रॉपर गोल बनाना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ उस सेशन से आप इंशाल्लाह वो एक्सेप्टेबल वैल्यूएबल कर पाएंगे। एनीबॉडी एल्स? देखें, स्मार्ट जो गोल्स होते हैं ना, वो एक अचीवेबल जो जैसे अचीवमेंट्स होती है ना, उसका प्रॉपर निचोड़ के जो हमें पॉजिटिव एक बन मिलती है ना,
उसको हम स्मार्ट गोल कहते हैं। आई होप यू ऑल गॉट इट। सर अच्छा, अगर एक जनरल जो है ना, एक मैं आपसे जी 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 इसको सही थोड़ा बात। एलेबोरेट कर दें तो प्लीज। जैसे फॉर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जनरल जो है ना डिफरेंस बताता हूँ, लाइक के हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क क्या है। थोड़ा ये अगर बता सकेंगे ना कोई आप में से, तो विल बी आप ऑटोमेटिक उसको क्लियर कर पाएंगे कि भाई हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क क्या है। अगर किसी को आ रहा है तो वो हैंड रेस करे प्लीज। Am I audible? यस यू कैन। So, in my opinion, I think that. Will you repeat the question, please? मैं कह रहा हूँ कि जैसे हार्ड वर्क है ना, Yes, sir. तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस क्या है। आप उर्दू में बता दे, कोई मसला नहीं है। रिपीटिंग 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 के आप जो है ना उर्दू में ही जो है ना सवाल भी करें और पूछे भी। नो इशू। जी सर। Yes, sir. I will try my best. ये सबके लिए ना आसान हो जाएगा। ये इसमें कोई जी। ये नहीं कि भाई जो हम अंग्रेजी जो है ना बोलते हैं सीखते हैं तो वो दूसरों के लिए थोड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन के लिए हम बोल रहे हैं, नहीं। नो डाउट आप आपके साथ जगह सही हो, बट कहने का मकसद ये, अगर आप उर्दू में बताएंगे ना पूछेंगे तो विल बी इजी फॉर ऑल आवर। सर इन माय ओपिनियन के हार्ड वर्क जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें एक अलग ही मोटिवेशन और डिसिप्लिन चाहिए फॉर द, क्योंकि वो हार्ड वर्क जो होता है ना काफी दफा लॉन्ग टर्म ऑफ गोल के लिए नीड होता है। वेरएज अगर स्मार्ट वर्क की बात की जाए तो वो भी उसके लिए भी डिसिप्लिन या मोटिवेशन चाहिए, लेकिन इट कुड बी लाइक अ जिग जैग और कुड बी ट्रिकी, मतलब वो आसानी से तय हो सकता है, या उसके लिए हमें कोई ट्रिक्स आनी चाहिए, कोई हम उसके लिए शॉर्ट एरिया ढूंढते हैं। फॉर सपोज अगर कोई हमें असाइनमेंट मिली है तो उसको हम करने के लिए मैं सही बोल रहा हूँ ना सर? जी जी जी, कैरी ऑन कैरी ऑन। सर तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी हमें टास्क मिलता है फॉर सपोज असाइनमेंट करने का, तो हम उसके लिए एक शेड्यूल ढूंढते हैं कि टॉपिक क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। हम उसको एक पूरा एक ब्रीफ तरीके से एग्जाम्पलाइज करते हैं कि पहले टॉपिक हो, फिर उसका फर्स्ट पैराग्राफ उसका एग्जाम्पलरी हो या उसको सपोर्टिव हो, फिर उसके एविडेंसेस लिखते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो इस तरीके से अगर हम उसको आसान तरीके से उसको स्मार्ट वर्क में बना सकते हैं, जो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, जो हमें इजी टू अप्रोच होता है, हम उसको खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके लिए हार्ड वर्क पे जाएं तो हम उसके लिए काफी तौर पे क्या करते हैं कि उस पर रिसर्च लिखते हैं, उस पर रिसर्च ढूंढते हैं, आइडियाज लेते हैं और मतलब उसमें ज्यादा टाइम लगता है और इन माय ओपिनियन यही है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। आई होप तो सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो गया हो तो आई एम शेयरिंग अ लिटिल पिक विथ यू, एक छोटी सी फीडबैक के लिए, एक छोटे से जो है ना explanation के लिए आपसे। जो मैंने पिक्चर शेयर किया आपको सबको नजर आ रही है? यस पिक्चर विजिबल। लेट मी नो। अच्छा, कोई पिक्चर को रीड कर सकता है? जो रीड कर रहा है काइंडली उसको वो हैंड रेस करे, तो आपको ना क्लियरली ना वो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में पता चल जाएगा। यस बिल्कुल मुस्बा, कोई मुझे पिक्चर की एक्सप्लेनेशन दे सकता है? ऑडिबल सर। यस यू कैन। तो बेसिकली ये जो बंदा है, जो शख्स है, जो 3 पल्ले ब्लॉक वाले लेके जा रहे हैं, उनको ज्यादा खसीटने में मेहनत लग रही है, जबकि जो ये स्मार्ट बंदा है इसने क्या किया, इसको तराश के इसको रोल करते हुए लेके जा रहा है, जिसमें स्मार्ट वर्क नजर आ रहा है। दैट्स ऑल। बिल्कुल, तो हमें इस स्मार्ट वर्क में टाइम लग सकता है एज कम्पेयर टू हार्ड वर्क। जैसे ये बंदा एक क्यूब लेके जा रहा है या कोई ऐसी कोई 4 स्क्वायर जैसे चीज हो सकती, एज कम्पेयर टू हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में जो है टाइमिंग है ना। जी सही था। जी हसनैन, गुड। आप सबको ये पिक्चर क्लियर जो है ना वो समझ आ गई? अगर किसी को नहीं आई तो वो काइंडली हैंड रेस करे। हेलो। जी जी बताएं समीर, आप समझ गए ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के डिफरेंस? जी जी सर, मैं समझ गया और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं। जी 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 बिल्कुल कर सकते हो। जी सर, जो फर्स्ट वाला बंदा है ना, उसने अपने जो काम को है ना वो एक स्मूथ बनाया हुआ है, स्मार्ट वर्क में चेंज किया हुआ है। और जो 3 और बंदे हैं उन्होंने मतलब एक क्यूब टाइप बनाया हुआ है और मतलब अपनी मंजिल को ना खुद ही मतलब उन्होंने एक हार्ड वर्किंग में डाला हुआ है। वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, उससे उससे ज्यादा कर रहे हैं आगे वाले से, लेकिन हैं पीछे, क्योंकि जो उनका काम है हार्ड वर्किंग है, पर वो नहीं है जो मंजिल पर जल्दी पहुंच सके और
इनका जो है टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, और ये टाइम कंज्यूमिंग करेगा। और जो पहले वाला बंदा है वो मतलब वो स्मार्ट वर्क के थ्रू जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। एक मतलब अच्छी बिल्कुल। प्लानिंग बनी हो जिसकी वो मतलब के आगे हो सके। जी सर। जी बिल्कुल, सबको समझ आ गया ये? जी जफर, यू कैन आस्क जफर। जी मिसबा, अब मुझे थोड़ा बताएं कि सेट स्मार्ट गोल्स क्या है, लाइक कि फिर आपको ना इस पॉइंट ऑफ को रख के आप इजीली समझ जाएंगे इस पिक्चर को। कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? सर, सेट स्मार्ट गोल्स को मतलब वही कि अगर हमारे पास, जैसे हमने ये पिक्चर देखी, तो इसमें जो है वो कुछ लोग जो है वो क्यूब लेके जा रहे थे, पर जो बंदा था जिसने अलग किया उसने पहले उसको तराशा। तो यही हमारा गोल होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने काम को इजी बना सकते हैं। तो ऐसे गोल सेट करें जो हम स्मार्टली अचीव कर सकते हैं, कम मेहनत और कम टाइम। हेलो सर, आर यू देयर? जी जी करण, थैंक यू। आवाज आ रही है सबको? आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू। यस सर, आवाज आ रही है। अमना सत्तार वांट्स टू स्पीक समथिंग। जी जी, मैंने कहा कि जो स्मार्ट वर्क है उसमें नो डाउट जो हार्ड वर्क है उससे टाइम थोड़ा कम लगेगा, पर ही विल बी बेटर देन अ हार्ड वर्कर। लाइक जैसे एक सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भाई कि फॉर सपोज करण, वुड यू लाइक टू टेल अस कि आपका फ्यूचर गोल क्या है? एक सर, एक एक एग्जांपल दे दे अपना, लाइक कि आपका एक पैशन होना, हर किसी का पैशन है अपना कि भाई व्हाट यू वांट टू बी। हर किसी का अपना वो एक जो ना वो गोल गोल सेट होता है, बट इन लाइफ वो उसके रेसिप्रोकल होता है। एग्री? ऑल ऑफ एग्री आई थिंक। जो सबको क्लियर हो गया होगा कि जो हम एक लाइक के जैसे हमने माइंड में सोच रखा है कि भाई करण ने ना फ्यूचर में जो है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना है, बट सम इन्वायरमेंट, सम जो है ना ट्रेनिंग, सम जो है ना फॉर एग्जाम्पल भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना है इसको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हो रहा। उसके जब ये बड़ा हो रहा है, बचपन में ये होता है ख्याल कि भाई जो ना भाई नाइन्थ मैट्रिक में होता है बंदा, तो वो कहता है भाई भाई मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना है, फ्यूचर में मेरा फ्यूचर ये है। फिर जब एंटर करता है तो उसका जो माइंड सेट रहा है वो चेंज होता है कि भाई मुझे अब ये नहीं, अब मुझे कुछ और चाहिए। फिर जब इंटर क्लियर करता है, जब वो मेडिकेट या टेस्ट देता है इंजीनियरिंग की या कोई और टेस्ट देता है, तो उसका वो जो मार्जिन है उसका टॉप टू बॉटम जो लिस्ट बनती है, एक मेरिट लिस्ट जिसको कहते हैं, फिर उनको इंटरव्यू में बुलाया जाता है कि भाई हमारे पास ये है सीट्स हैं, आपको जो अवेल करना चाहे। बट मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि जो एक फेवरेट जिसे हम कह सकते हैं ना, जैसे हम कह सकते हैं कि हमें एक फेवरेट चीज उसको हम जो ना उसमें करने में ज्यादा एक मजा आता है एज कम्पेयर टू अदर वन। एम आई राइट? जी सर, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं एग्जांपल इस वजह से आपको दे रहा हूँ जिससे आपको ना एक प्रॉपर क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी, इसकी क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे हम इसको फिजिकली रियल लाइफ में अपने इसमें यूज करते हैं ना। जी नूरलैंड, आर यू विद अस? जी सर। आर यू विद अस? यस यस। गुड। यस करण, जैसे फॉर एग्जांपल भाई कोई मोस्टली घर में फ्राइडे फ्राइडे के जो जैसे कि आज फ्राइडे था, मोस्टली हर किसी के जो है ना घर में वो बिरयानी पकती है। फॉर सपोज एक एक ट्रेंड भी है, एक जो है ना हर किसी को आइडिया होता है कि भाई हमारी एक पसंदीदा डिश जो है ना पकी है, तो उसको बंदा वो एक्साइटमेंट से वो जो है ना उसको खाता है कि यार उसमें टेस्ट वगैरह ये वो। अगर एक हफ्ता छोड़ के दूसरे हफ्ते आपको पता हो कि भाई इस हफ्ते जो है ना इस फ्राइडे को बिरयानी पकनी है, इंस्टेड ऑफ सम रीजन बिहाइंड कि भाई नहीं पकती, तो आपको पता है उसको आप जो है ना उसको एक अजीब एक जो है ना प्रिकॉशन मिलेगा। लाइक कि भाई जैसे मेरे एक फॉर एग्जाम्पल हर फ्राइडे में बिरयानी खाता हूँ फॉर सपोज, तो एक हफ्ता मैं छोड़ दूंगा तो एक अजीब ना एक पिंस होती हैं, उसको जो सा हार्मोन्स जो हमारे होते हैं ना बॉडी के, वो उसको वैसे कैच नहीं कर पाएंगे। आई होप यू आर गॉट, लेट मी नो इन चैट बॉक्स। यस करण, आप समझ गए? वुड यू लाइक टू टेल अस? जी सर, वो अनयूजुअल बिहेवियर के बारे में आपने बात की, जी कि जनरली एक जो ट्रेंड बना हुआ है, अगर वो कहीं मिस हो जाए तो एक
अलग सी फीलिंग होती है। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया ना कि अगर हमारा कोई एक फ्यूचर गोल हो, अगर लाइक सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया कि भाई एक बंदा है, वो मैट्रिक में सोचता है कि भाई मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना है। तो वो जब इंटर में आता है तो उसका फिर उससे गोल जो है ना वो चेंज होता है कि भाई मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं होना, अभी मुझे सीएस करना है। फिर जब वो इंटर क्लियर करता है, जब उसकी एंट्री टेस्ट नजदीक आ जाती है, ये एनवायरनमेंट से जो है ना वो पूछताछ के, और ड्यू टू ट्रेंड की वजह से अपना वो गोल चेंज कर लेता है। मतलब कि इसका जो एक बंदे का एक गोल है, वो अपने फोकस से हट गया, जो उसका मेन पेशेंस था ना, जैसे वो मतलब उससे गिव अप कर गया। लाइक कि भाई उसको एक बचपन पे वो मूवीज वगैरह में, या लाइक के अपनी रियलिटी में, कजन्स में, अपनी फैमिली में, या आसपास से लोगों में, एक जो है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो बनते हुए देख रहा है कि भाई मैं यहाँ से इंस्पिरेशन से यहाँ से ली है कि भाई हमारे एक जानने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो इतना वो अर्न करते हैं, और फॉर सपोज वो एक जो ना वैलिड और वो सुटेबल उस कंपनी में जॉब कर रही है वो। तो उनसे इंस्पायर होके वो जो ना अपना वो गोल एक सेट करता है, जिसमें वो अपना वो एक इंटरेस्ट लेता है। कहने का मकसद, जिस चीज में अगर आपका फ्यूचर गोल में अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उससे आप लेकर जाओगे उस तक पहुंचने तक, तो फिर आपको लेजीनेस भी होगी, एंजाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, मायूसी भी होगी, ओवरऑल जो वीकनेस, जो साइड इफेक्ट्स, जो पेन्स होती हैं, वो आप लगेगी। अगर इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आपका फोकस प्रॉपर प्रॉपर बिल्कुल प्रॉपर भाई कि हमारा फोकस यही है बचपन से जवानी तक, कि भाई एक जो है ना हमारा फोकस यही है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, तो बनना है, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, भाई वो बन गया। तो जब उसको अवेल करने की वो बारी आएगी, तो यू बेटर नो ना कि उसकी फीलिंग्स क्या होंगी, जो उसका विनिंग पॉइंट होगा। आई थॉट आप समझ गए। वैसे ही डिसिप्लिन में हमें, डिसिप्लिन जैसे है ना हमें इसमें नीड होती है किसी भी चीज में। जरूरी नहीं कि भाई जैसे एक डिसिप्लिन बना होता है भाई कि डिसिप्लिन क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एसओपीज क्या है, भाई कि ये एक स्कूल है, उसका एक यूनिफॉर्म बना हुआ है, ये भी डिसिप्लिन में शुमार है। भाई सुबह आते हैं 8 बजे, परेड होती है भाई, उस ये भी एक डिसिप्लिन है, ये भी एक एसओपी है कि भाई अच्छा, जो यूनिफॉर्म पहनते हैं भाई, शू भी पॉलिश होने चाहिए, ये भी डिसिप्लिन है। प्रॉपर जो उसका टॉक होना चाहिए, कि वहां पे जाहिर सी बात है आप तो जो है ना वो ऐसे वर्ड्स नहीं बोल सकोगे, वहां पे भी एक डिसिप्लिन वहां पे इंटरेक्ट करता है कि भाई जहाँ पे ये सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, इस जहाँ पे सीखने आए हैं, तो आप चीजें सीखेंगे। ऐसे ऐसे मतलब कि अल्फाज जो होते हैं, या ऐसे जो, ऐसे कभी कभी सुना है कि स्कूल में कोई जो है ना बाहर जो है ना कोई जैसे फॉर सपोज कोई अनएजुकेटेड लगता हो दूर से, नहीं, इसमें ये नहीं है। तो इसमें ये है कि गोल बनाने के लिए ना हमें प्रॉपर एक एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। लेजीनेस को किल करने के लिए प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जो हमारी बुरी हैबिट्स हैं उसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, उसको डिनाई करना पड़ेगा भाई कि फॉर एग्जाम्पल आज तक जो मैंने किया तो किया, जो हैबिट्स थी, कल से जो मैं अपना स्केड्यूल बनाऊंगा, शेड्यूल बनाऊंगा कि भाई यही है, मुझे सुबह और जल्दी उठना है, अपना हेल्थ का ख्याल करना है, एक्सरसाइज करना है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका वो ब्रेन जो है ना प्रॉपर वो काम भी करेगा। करण, यू गॉट इट? यस सर। एंड ऑल्सो ऑल ऑफ अस। जी। तो जो हैबिट्स है ना, अगर आप जो बुरी हैबिट्स को अगर आप खत्म करोगे, तो ऑटोमेटिक जो आपकी लेजीनेस है ना वो खत्म हो जाएगी। जी अमजद, गुड। तो इससे जो है ना हम ओवरकम कर लेंगे कि भाई लेजीनेस हमारी खत्म होगी। तो एक दिन हो सकता है कि आपको तकलीफ हो, एक दिन तकलीफ हो, 2 दिन तकलीफ हो सकता है आप जो है ना गिव अप कर लो कि भाई नहीं, जो है ना मुश्किल है, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो बंदा इस हैबिट से गुजरता है, लेजीनेस से, उसको जो ना वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, जाहिर सी बात है उसको ना वो क्या कहते हैं उसको, मुश्किल लगता है। बट विथ पेशेंस, विथ फोकस, एंड विथ टाइम टेबल, विथ बिलीव, तो वो उसको कर लेगा। जी। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो
आप पूछ लें भले ऑल पार्टिसिपेंट्स। यहाँ तक समझ आ गया सबको? अगर किसी को नहीं आया तो काइंडली वो या तो हैंड रेस करें या तो चैट में पिन करें। एनीबडी एल्स? डिसिप्लिन इम्पोर्टेंस, डिसिप्लिन जो है ना इम्पोर्टेंट क्यों होता है हमारी लाइफ में, कोई बता सकता है? जैसे मैंने आपको सबको एक एग्जांपल दी, उस एग्जांपल को रख के अपने माइंड को थोड़ा वो ब्रेनस्टॉर्म करें। डिसिप्लिन जो है हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह क्या है? सर, डिसिप्लिन की वजह से हम कंसिस्टेंटली जो है वो किसी एक डायरेक्शन में एफर्ट्स पुट कर सकते हैं। अगर हम डिसिप्लिन नहीं हो सकते तो एक डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली हम एफर्ट्स पुट नहीं कर सकते। स्लोली ग्रेजुअली करके हम जब एक गोल की तरफ एफर्ट्स पुट करेंगे तो वो डिसिप्लिन से ही वो चीज आएगी। जी गुड। इसमें ये है कि हमें एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए भाई, कि एक जो ना प्रॉपर सेल्फ कंट्रोल होता है ना, सेल्फ कंट्रोल समझते हैं सब? कोई क्लियर करेगा इसको, सेल्फ कंट्रोल को, कि भाई सेल्फ कंट्रोल क्या है इसमें? एनीबडी एल्स? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना, लाइक के अपने, जी नूरलैंड। सर आई थिंक जैसे हमें कभी कभार ना मतलब किसी चीज पे गुस्सा आ जाता है, ठीक है, तो हम उसको कैसे जो है अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें मतलब बहुत हम इमोशनल हो गए हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें रोना आ रहा है, तो वो मतलब कैसे खुद को जो है अपने फीलिंग्स को है वो कैसे कंट्रोल करें, वो सारी चीजें आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ कंट्रोल यही है। लाइक के जी अमजद, आप कुछ बता रहे थे? यस यस। जी सर, सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने इमोशंस पे, अपने एग्रेशंस पे, अपनी मूवमेंट्स पे, अपने जिस्म पे, अपने जो ख्यालात है उन पे कंट्रोल करने को सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं सर। बिल्कुल। लाइक सपोज जैसे फॉर एग्जांपल हमें गुस्सा आ रहा है, फॉर सपोज भाई हमें गुस्सा आ रहा है कि किस बात पे, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा आ रहा है, तो जब हम उसको गुस्से को ठंडे दिमाग से सोच के उसको सेल्फ कंट्रोल करेंगे तो ऐसा समझे कि वो हमारी एक प्लस पॉइंट है। अगर हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो हमको बाद में पछतावा होगा। एम आई राइट? तो उसके लिए हमें सेल्फ कंट्रोल चाहिए। जी अमजद, वुड यू लाइक टू टेल समथिंग? आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं सर, वो पहले ही हाथ ऊपर था, सॉरी। जी जी, ओके। आई होप यू ऑल ऑफ गॉट दिस। अच्छा, उसके बाद जो हमें ना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, डिसिप्लिन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? लाइक कि भाई हमें एक प्रॉपर रेस्पॉन्सिबल होना है डिसिप्लिन में। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। कोई कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे इसका? सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वो ये मीटिंग जो है वो 5-6 मिनट में एंड हो जाएगी, तो जी अगर जी आप सम अप करना चाहें तो इसी मीटिंग में कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हम दूसरी मीटिंग भी बना सकते हैं। जी, आई थिंक जो है ना हमें वो दूसरी मीटिंग जो है ना करनी चाहिए स्टैंड अप, क्योंकि उसमें थोड़ी वो लास्ट है। 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, नो नो मोर। ठीक है, तो हम दूसरी मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं तब तक। जी जी। मैं कुछ कह रहा था, आई थिंक कोई रिमाइंड दिलाएगा? हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी का, रेस्पॉन्सिबिलिटी इन डिसिप्लिन। कोई इसका एग्जांपल देगा या कोई क्लियर करेगा इस चीज को? डिसिप्लिन में रेस्पॉन्सिबल बंदा कैसे होता है? अभी भी नूरलैंड ने जो बताया, हमने जो हमें बताया नूरलैंड ने, वो उनमें ही ये चीजें इंक्लूड थी, जैसे अमजद ने भी बताया। समीर, होल्ड ऑन नूरलैंड। जी समीर। जी नूरलैंड बताएं। जी सर, जैसे सर हमें फॉर एग्जांपल कहीं पर हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर उस मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंस्टीट्यूट में हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें अपने डिसिप्लिन में रहकर हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कुछ वहाँ हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंस्टीट्यूट में हम बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर अक्सर कभी कभार जो है कहीं पर बहस भी हो जाती है, ठीक है, मतलब ऐसा माहौल बन जाता है कि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है, तो उसी मतलब उनके उनके पास मतलब उनकी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, ठीक है। जैसे हम एक मैनेजर हो गया, ठीक है, उनको जो है वो मतलब पूरी तरह जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे चलाना पड़ता है, पूरा ऐसे इस तरह मैनेज करना पड़ता है कि अगर कभी कभार उनको गुस्सा भी आ जाए तो वो खुद को जो है अपने गुस्से को कंट्रोल करके फिर उस पर सोच कर फिर उसको जो है जो भी मतलब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको सॉल्व कर दें। जी बिल्कुल। कोई और? कोई और?
जो उसको क्लियर करें। बाकी पार्टिसिपेंट्स को लाइक कि वो क्यों लाइक उनको समझ नहीं आ रहा या कोई और वजह है। करण कोई फॉलो करें प्लीज। सर वो कुछ लोग जो है ना वो बोलने में उनको इशू है, लाइक कहीं पे तो वो टाइप कर रहे हैं। गाइस इफ यू कैन स्पीक प्लीज, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बोलिए। देखिए अगर आप जो है ना वो सेशंस में से आई थिंक ये जो है ना 100 में से 25% ही ये जो है ना वो क्या कहते हैं एक्टिव हैं। बाकी खैर कोई मसला नहीं। आई होप यू आई विल गेट। जी अमजद आप कुछ कहना चाह रहे हो? सर देखें, जैसे नूरुल ने कहा कि अगर हम किसी जॉब में कर रहे होते हैं तो उसमें प्रायोरिटीज होती हैं, उसमें काफी सारी ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसमें वर्क होता है। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल दूं एज अ स्टूडेंट की, सो एक स्टूडेंट का को भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि वो वक्त पे पढ़े, सोए, खाए पिए, और मतलब जो उसका एज अ स्टूडेंट मतलब उसका काम ही सिर्फ पढ़ना होता है, टू मोनेटाइज हिमसेल्फ। ठीक है सर, अगर वो डिसिप्लिन होगा, अपनी बेस्ट देगा, अपनी एफर्ट से अपने टाइम मैनेजमेंट अच्छा करेगा, टीचर को रिस्पॉन्स अच्छा देगा, पेपर्स में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, तो इट विल बी कुड बी इनफ टू बी डिसिप्लिन सर।